So welcome back. This is lecture 3 of OMSM. Okay, and this is for CMA Intermediate, June 2022 attempt. Okay. So चलिए हमारा स्टडी नोट 2 चल रहा था, ऑपरेशंस प्लानिंग, उसका एक लेक्चर हो गया था और नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑपरेशंस प्लानिंग. ओके. So basically this is what we are studying in operations planning. So ये सारी चीजें हमको पूरा करना है. ठीक है. So let's see. So we started with demand forecasting, right? Demand forecasting we have done, and we did 4 problems on that. Next in line is your capacity plan. Okay. So this is where we had to continue, right? This is called as capacity planning. Okay. So capacity planning से हमको क्या समझ में आता है? First of all, what do we understand by capacity planning? Okay. So it means that we are saying with the demand forecasting or sales forecasting, we have said that sales of 5,000 units is possible. Okay. We have said that sales of 5,000 units is possible. Right. So for this, once you know that this much sales is possible, next thing you will see is, can you produce 5,000 units? Do you have capability of producing 5,000 units? 5,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ये हमको देखना होगा. राइट. सो ये जो है, इस चीज को हम बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग. ओके. आप पहले ये देखेंगे कि 5,000 यूनिट्स बनाना है. ओके. इफ यू हैव टू मेक 5,000 यूनिट्स and say we have got 5 machineries right now. Okay. 5 machineries right now, but for 5,000 units you need one more. So you will have to either buy it or hire it. Okay. So when you know that you can sell 5,000 units, you will have to see whether you have capability of producing 5,000 units. Okay. Okay. So this is what we do in capacity planning, right? So effective management of capacity is the most important responsibility of production and operations management. Okay. So this is very, very important for production and operations management, to make sure that how much you can sell, you have the capability of producing. Because if you don't call it early, ठीक है, अगर आपने सही टाइम पे ये चीज रेज नहीं किया कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप 5,000 बेच सकते थे लेकिन आपने 4,000 ही आप बना पाए. इट्स अ लॉस ऑफ 1,000 यूनिट्स. So that can happen. Okay. So which is why planning of capacity is very, very important, and it has to be done well in advance. Okay. So the objective of capacity management, so capacity planning and capacity management are same terms. That is planning and control of capacity. Why do we plan capacity? Is to match the level of operations with the level of demand. 5,000 units you have to match with what you can produce. So you will have to make sure that you produce 5,000 units. Okay. You will match the level of operations with the level of demand. So level of operations means your production, demand is your sale. Okay. This is why we do capacity planning. Okay. So next is capacity planning is concerned with. Okay. So what do we do in capacity planning? Actually, क्या किया जाता है? Okay. So one is what kind of capacity is needed, right? Or I'll tell you what these are. Then how much capacity is needed and when it is needed. Okay, so what kind of capacity means you might need certain machines, machine category A, machine category B. You might need some workers, and in workers you might need some skilled workers, some semi-skilled workers, right? So it is distributed in that way. So what kind of capacity is needed? Okay, that you will have to know. Only then you know what you have to buy or what you have to acquire. So what kind of capacity is needed?
and second, how much it is needed. Okay, of course the quantity. Okay, how much capacity you have, it is needed, and when this is needed is also very important. Okay, so when is important, because say you need it for 1 quarter, then that must be operational at least 10-15 days before the quarter, correct? It should be ready. If it is delayed, then what will happen? Okay, agar suppose aapne, you need it for the quarter 1, say you need it for quarter 1. Okay, let's say 5,000 units of capacity. Okay, 5,000 units is required for quarter 1. So now say agar is end of quarter 1 matlab Jan to March, correct? Jan to March. So you have to install certain capacities and all. If you do it on 15th of January, okay, so for 15 days your capacity is going to be low, so you will not be able to hit 5,000. Okay, so which is why you have to make sure that you have the capacity for the quarter before start of the quarter. ठीक है, ओके, क्वार्टर के चालू होने से पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, कैपेसिटी तैयार रखना पड़ेगा. Hence capacity planning is concerned with what kind of capacity, how much capacity, and when capacity is needed. Okay, right? So capacity planning, keeping in mind future growth and expansion plans, market trends, sales forecasting, etc. तो आप कैपेसिटी प्लानिंग को किन चीजों को देखते हुए प्लान करेंगे? You will plan capacity seeing which things. So you will see future growth, right? So why future growth is important is, if I buy capacity only for the current quarter, right, and my business is growing, I would need more for the next quarter, and I buy that in the next quarter, then it might be costlier. If I buy now itself, maybe I can get it at a lower price. So you have to see the future growth, and based on that you make the purchase. Okay, and if there are expansion plans of your company, okay, that means future capacity is going to increase, right? Sales forecasting of course is an important driver. Okay, so now next you have to see is what is capacity. ये हम formula में आ रहे हैं, ठीक है? We are talking about formula. What is capacity? Capacity is the rate of productive capability of a facility. Okay, it's the rate of productive capacity of a facility. Rate word हम कब use करते हैं? जब we are trying to tell something per unit of time. ठीक है? So जैसे यहाँ पे होगा capacity is equals to volume of output per period of time. ठीक है? यानी 1 घंटे में कितना आप output बना पाते हैं? That is mathematically capacity वो है. ठीक है? 1 hour में how much volume you can create. ठीक है? So इसको इसी को बोलने का और एक तरीका है. There is one more way, okay, of saying this. There is one more way. Capacity is the rate of productive capability of a facility. ठीक है? Rate of productive capability का मतलब है volume of output per period of time. So per period of time जो है, it can be quarter, month, year, whatever. ठीक है? चलिए, so this is basically from the formula end, right? चलिए, अब कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग ये है. इसमें जो है आपका स्पेशली और ऑपरेशंस प्लानिंग में गॉट मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस व्हिच आर सिमिलर. ठीक है, थियरी क्वेश्चंस व्हिच आर सिमिलर. सो बट वंस यू नो किस में क्या लिखना है, then it will be easy for you. Once you understand this question is for what, because there will be several these five pointers, काफी सारे रहेंगे, क्लोज रहेंगे. ओके, will not be very different. Okay, difference रहेगा, but it will be close. Fine. So चलिए, so next is we are seeing capacity planning is required for. क्यों capacity planning की जरूरत पड़ती है? So yes, it is very general. Okay, to meet customer demands in time, right? Cost efficiency of operations. जैसे if you plan capacity at the right time, it will be cheaper for you. Okay, capacity affects the scheduling system. Okay,
कैपेसिटी अफेक्ट्स द स्केड्यूलिंग सिस्टम। तो ये क्या है स्केड्यूलिंग जो है, ये हम आगे देखेंगे पीपीसी में, इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल विल सी व्हाट इज स्केड्यूलिंग। ठीक है, यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स अबाउट स्केड्यूलिंग आल्सो। तो स्केड्यूलिंग ये करता है कि अगर देखिए इन अ फैक्ट्री, दिस इज योर फैक्ट्री, ठीक है, ये आपका फैक्ट्री है, देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर डन इनसाइड अ फैक्ट्री, ठीक है। सो ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक मशीन का यूज करना है, ओके, फॉर देयर आर 4 एक्टिविटीज टू बी डन, डिफरेंट एक्टिविटीज यूजिंग वन मशीन। इफ ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, ऑल ऑफ दीज कम टुगेदर, देन 3 विल हैव टू वेट, और एक ही प्रोसेस किया जाएगा, करेक्ट, राइट। सो इससे क्या होगा, आइडल टाइम बढ़ेगा, राइट, आइडल टाइम विल बी मोर। सो विच इज वाई सबका टाइमिंग scheduled रहना चाहिए, that is this product will be manufactured between 4 p.m. to 5 p.m. Then after that B will be manufactured from 5 to 5:30. So all these are computerized. Scheduling is a computerized thing, okay. Everything is scheduled throughout 24 hours of the factory, or whatever is the time factory is working, okay. One by one all activities are done without any activity having to wait, ठीक है। सबका टाइम पूरा स्केड्यूल्ड रहता है, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट डू, इफ यू से ओके एक एक करके हम करेंगे, देन देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर देयर विल बी ओनली वन मशीन एंड 5 प्रोडक्ट्स विल बी वेटिंग फॉर इट, ठीक है। सो द नेक्स्ट मशीन आल्सो विल बी आइडल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केड्यूलिंग। दैट्स व्हाई टाइमिंग इज स्केड्यूल्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ए कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटी होता है, ओके, यूजिंग एसएपी एंड ऑल दैट, ओके, किया जाता है, ठीक है। So that's why third is capacity affects the scheduling system. So for proper scheduling, you need particular level of capacity. Okay, capacity itself is less, then you will not be able to do proper scheduling. Which is why capacity planning is required from scheduling point of view also. Right? Requires an investment. Okay. Next is it requires an investment. ठीक है, ये तो हमको मालूम ही है। फॉर कैपेसिटी ऑफ कोर्स आई मीन इट विल नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट। आपको प्लांट या मशीनरी सेटअप करना है, राइट, टू सेटअप मशीनरी और प्लांट, एंड इट डेफिनेटली रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सो विच इज व्हाई इफ यू हैव टू शेल आउट मोर मनी, यू हैव टू बी मोर केयरफुल, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई ये भी है। तो ये सारी चीजें कैपेसिटी प्लानिंग must be done properly because of these factors. Last one is when organization decides to produce more or new products, ठीक है। whenever organization wants to produce something more, then again you need good capacity decision, because if you just think I want to produce it, you might not have the capacity, right. So ये points है आपके important। इसमें आपको जो है ना, you do not have to elaborate इसमें capacity planning, why is capacity planning required, if they ask you, just have to give these points, that is sufficient, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 3 to 4 मार्क्स का ही क्वेश्चंस कैन कम ऑन दिस, ओके। चलिए, नाउ वी आर सीइंग टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। जैसे मैंने बोला ना कि दैट वाज नीड ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, नाउ इट्स टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। सो काफी सिमिलर चीजें रहेगी इस चैप्टर में, ओके ओके, बट यू केयरफुली रीड इट और केयरफुली गो थ्रू द वीडियो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा वो क्या है, ये क्या है, ओके। सो नाउ capacity planning is of 2 types, जैसे हमने we had studied this in demand also, correct, ठीक है। so we said long term, medium term, short term, right। वैसे enough capacity planning also there are 2 types, okay। इसमें you have got long term and short term, ठीक है। so long term capacity planning जो है आपका, ठीक है, so long term is for investment in new machinery, plant and all, आपको नया कुछ खरीदना है, ठीक है। So, but because see, in capacity, you will not buy and keep 5 years in advance and all that, correct? आपको अगर, ठीक है, unless it is ऐसा कुछ plant आप setup कर रहे हो, which has to be set up well in advance, ठीक है, complete production facility, that is another thing. But normally whatever capacity planning is there, machinery or even plants, small plants you have to set up, okay, time period maximum is 2 years is sufficient.
2 years in advance. So long term capacity plan itself is more than 2 years. ठीक है, जब मैं 2 years बोल रहा हूँ तो मतलब it will start from 2 years basically. ठीक है, it will start from 2 years. तो नॉर्मल केसेस में जो है ना आपका सारा कैपेसिटी लॉन्ग टर्म जो है, अब 2 साल 2.5 साल में यू विल बी एबल टू प्लान एवरीथिंग. ठीक है, इफ यू आर सेटिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, ठीक है, जो बनने में 5-6 साल लगता है या समथिंग लाइक दैट, ओके, देन यू माइट नीड ऑफ कोर्स 5 years और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग, और किस चीज में आप कर रहे हो उसके ऊपर काम कर रहे हो. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड ऑल, इट कैन बी मोर देन 10 years. ठीक है, सो ये है, तो इसीलिए इतना एक जनरल बता दिया गया आपको कि 2 years से कम नहीं है बस. ओके, लॉन्ग टर्म इज नॉट लेस देन 2 years, इट विल बी मोर देन 2 years. ओके, एंड शॉर्ट टर्म के लिए देयर इज नथिंग सेपरेटली आपको टाइम पीरियड नहीं दिया गया, सो बेसिकली इट इज अप टू 2 years. ठीक है, बट ये शॉर्ट टर्म है. ठीक है, तो थियोरेटिकली अगर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लान में वर्क फोर्स साइज, तो दिस यू विल डू बैच टू बैच और क्वार्टर टू क्वार्टर आप देखेंगे, ऑर्डर टू ऑर्डर. ओके, ओवर टाइम बजट्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा, सो दीज थिंग्स नो नॉर्मली इट विल बी अप टू 6 months ओनली. ठीक है, ओके, सो ये है आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लानिंग. ओके, 2 टाइप्स हो सकते हैं. चलिए, ना दिस इज अगेन व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, वही हम अभी रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कैपेसिटी इज व्हाट मैक्सिमम लोड एंड ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल. ठीक है, ये भी बोल सकते हैं. एंड ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर पीरियड ऑफ टाइम, दैट आल्सो यू कैन से. ठीक है, मैक्सिमम लोड एंड ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल, उसको भी कैपेसिटी बोला जाता है, राइट. ठीक है, सो जैसे अगर हम मैंने पूछा आपको कि आपका अबाउट योर बाइक्स पेट्रोल टैंक, बाइक्स पेट्रोल टैंक, ओके, कितना पेट्रोल आता है करके, आप बोलोगे उसकी कैपेसिटी इज 10 liters. ठीक है, इसको भी हम कैपेसिटी बोलते हैं, राइट. सो ये भी होता है कैपेसिटी. और प्रोडक्शन में, ठीक है, ये ऐसी चीज है जहाँ स्टोरेज में इट इज एब्सोल्यूट. ठीक है, प्रोडक्शन में इट विल बी हाउ मच प्रोडक्शन कम्स आउट पर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अच्छा, ये ऑपरेटिंग यूनिट बोला है हमने, व्हाट इज यूनिट, ये तो ये आपको मालूम ही होगा ऑलरेडी, राइट. प्लांट, डिपार्टमेंट, मशीन, इट कैन बी अ वर्कर ऑल्सो. ठीक है, वर्कर से आपका लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन है. सो यू हैव टू प्लान प्रोडक्शन, यू शुड नो कि ईच वर्कर कितना प्रोड्यूस कर सकता है, एंड द एबिलिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वर्कर्स. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट इज इक्वल्स टू व्हाट इज, यानी और एक, ये सब हम बस कैपेसिटी के अलग अलग डेफिनेशन हम देख रहे हैं. ओके, ऑल दीज आर यूज्ड. So capacity of a plant is maximum rate of output the plant can produce. ठीक है, maximum rate of output the plant can produce. ठीक है, maximum rate यानी वही हो गया output per period of time. ठीक है, वही कितना maximum it can produce. ठीक है, then production capability of a facility is equals to maximum rate of production per period of time. ठीक है, फैसिलिटी के लिए इट विल बी मैक्सिमम प्रोडक्शन पर पीरियड ऑफ टाइम. ये सारे अलग अलग नोटेशंस हैं. व्हेन यू सी द प्रॉब्लम्स यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि हम कैसे कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे. ओके, दिस फॉर डिफरेंट अलग अलग चीजों के लिए थोड़ा अलग अलग रहेगा. ओके, सो यार प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैसिलिटी है ना, कंप्लीट प्लांट या ऐसा कुछ है, मैक्सिमम रेट ऑफ प्रोडक्शन पर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, चलिए, और यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. प्रोडक्शन पीरियड है, दैट्स ठीक है, प्रोडक्शन पीरियड कैन बी आवर, डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, एनीथिंग इट कैन. ओके, चलिए, ओके, अभी हम क्या बात करेंगे नेक्स्ट, ये हमने वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कैपेसिटी. ठीक है, सो नाउ देयर इज अनदर टर्म जिसको कहा जाता है इफेक्टिव कैपेसिटी. ठीक है,
चलिए, तो अभी इसमें मैं एक चीज बोलूंगा आपको। आई टेल यू वन थिंग। सी, आई टोल्ड यू, you told me that your bike's tank capacity, okay, is equals to how much? 10 लीटर्स आपने बताए, ठीक है। 10 लीटर्स ऐसा कुछ। ऑलवेज देर इज सम मेक कैपेसिटी, है ना, जो आपका, आप जब खरीदते हो तो मैन्युफैक्चर गिव्स सेज दैट इट इज द कैपेसिटी। बट व्हेन इन रियलिटी आप इसको फुल करने जाते हो तो मे बी यू कैन load up to 9 लीटर्स, 9.5 लीटर्स, करेक्ट। रियलिटी इट इज डिफरेंट, करेक्ट। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कैपेसिटी। इसके लिए बोलेंगे हम इफेक्टिव कैपेसिटी, विच इज इन रियलिटी पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि इसमें व्हाट हैपेंस, ओके, हियर, कि आपका कैपेसिटी एंड इफेक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो मान लीजिए आपने हमने वी हैव अ प्लांट, इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 5000, ठीक है। यू कैन प्रोड्यूस 5000, बट ये 5000 के लिए प्लांट विल नॉट रन ऑटोमेटिकली, राइट। उसके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर भी चाहिए हमको, राइट। यू नीड सम सपोर्ट स्ट्रक्चर, यू विल हैव टू हैव सम वर्कर्स ऑफ पर्टिकुलर स्किल एंड ऑल दैट। से यू नीड for for using it to the full potential, you need 20 workers, ठीक है। बट आप जो है ओवरऑल कॉस्ट कंसिडरेशन को देखते हुए यू एम्प्लॉय ओनली 15 वर्कर्स, ठीक है। सब 15 वर्कर ही आप कर रहे हैं, तो although the capacity is 5000, your effective capacity will be less now, correct, with less number of workers they have to handle the plant, ठीक है। तो effective capacity में भी मान लीजिए आपका आ जाएगा 4000 और whatever, ठीक है। so effective capacity का मतलब हिंदी में अगर मैं समझाऊं आपको, तो वो ये है कि हम मेरे करंट कैपेसिटी जो, मेरी करंट कैपेबिलिटीज जो है, ओके, वर्क फोर्स एंड ऑल अदर थिंग्स विच आई हैव, ठीक है। एक और सिंपल चीज बोलता हूँ ना, इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रहता है 12 आवर्स ही, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 12 आवर्स रहता है, ठीक है। और ये डिजाइन कैपेसिटी है, इसको फुलफिल करने के लिए आपको एक दिन में 16 आवर्स चलाना है मशीन। सो नाउ इन योर एरिया कैन यू मैन्युफैक्चर 5000? यू कैनॉट, राइट, ठीक है, क्योंकि आपके इधर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है उतना, राइट। सो योर इफेक्टिव कैपेसिटी विल रिड्यूस। इफेक्टिव कैपेसिटी आपके करंट कंडीशंस में आप कितना प्रोड्यूस कर सकते, ओके, that is called as effective capacity, okay। So effective capacity is determined by the following factors, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स, इसमें जो है, जो भी मैंने आप अंडरलाइन करके रखा है यहाँ पे, ओके, आपको उस वही पॉइंट में आप फोकस करेंगे तो यू विल बी एबल टू राइट द होल थिंग, ठीक है। सो ये है इफेक्टिव कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय दीज थिंग्स, यानी क्या चीजें हैं जिससे इफेक्टिव कैपेसिटी कम है, तो कितना कम है आपको पता चलेगा, ओके। इट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? वन इज फैसिलिटीज, ठीक है, जो और हमारा डिजाइन, लोकेशन वगैरह, एनवायरनमेंट, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो उससे है, उससे इट बिकम्स डिफरेंट, ठीक है। हमारे पर्टिकुलर एरिया के क्वालिटीज के हैं, ऑल दैट। देन प्रोडक्ट, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मे बी द डिजाइन इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इफ योर्स इज सम स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो आप इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी लेस, ओके। प्रोसेस क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, आपके कुछ साइड के और जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आपको उसको निकालना पड़ता है, सपोज यू हैव टू मूव, दैट मूवमेंट फैसिलिटी इज लिटिल स्लो फॉर यू, ठीक है। तो प्रोसेस उतना फास्ट नहीं है, तो इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी लिटिल लेस। ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स जो है, जो ह्यूमन कितने मोटिवेटेड है, ओके, हाउ फास्ट दे आर, व्हाट इज द टैलेंट ऑफ योर वर्कर्स, दैट विल आल्सो डिटरमाइन। ऑपरेशनल फैक्टर्स इज लाइक शेड्यूलिंग, मटेरियल्स मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अगर यार आपके क्वालिटी इज ऑफ लो नेचर, सो यू हैव टू इंस्पेक्ट मोर, तो आपको इंस्पेक्शन के लिए यू हैव टू रन द मशीनरी स्लो सो दैट यू इंस्पेक्ट इट प्रॉपरली, ठीक है। अगेन योर इफेक्टिव कैपेसिटी विल बी लेस। लास्ट है आपका एक्सटर्नल
फैक्टर्स, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसको कम कर सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, सेफ्टी रेगुलेशन, ये सब जो है, यूनियन एटीट्यूड, ये सब चीजें कम कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको सपोज यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स भी है, तो पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में से यू हैव टू, आपको पोल्यूशन का कुछ मशीनरी लगाना पड़ता है बियॉन्ड अ सर्टेन वॉल्यूम, ठीक है। सो दैट यू डू नॉट हैव राइट नाउ, ठीक है। तो आपका दैट विल लिमिट योर प्रोडक्शन, करेक्ट। तो ये सिंपल चीजें हैं जो साथ में यहाँ लिखे हैं। ऑल दीज थिंग्स यू कैन इजीली राइट, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। सो इफेक्टिव कैपेसिटी में will be determined by facilities, your nature of facilities, product, process, human factors, operational factors and external factors. ये याद रख ली, इसमें क्या क्या है ध्यान रख ली, that is sufficient. Okay, चलिए अब next we will talk about measurement of capacity. Okay, next we will talk about is measurement of capacity. ठीक है, कैसे हम capacity को measure करते हैं. Okay, the capacity of plant expressed as rate of output per period of time, ये हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। And if producing different types of products expressed in monetary value of all products, ठीक है। so क्या होता है ना, if we are producing many different, मान लीजिए we are producing 10 different types of products, ठीक है। so अगर आप if you try to apply say show this in units, ठीक है, तो it will become very complex, ठीक है। ओके, टाइप ए, ठीक है, टाइप ए 20 यूनिट्स, टाइप बी, अगर ये इस तरह से मैं लिख के दूंगा पूरा, ठीक है, इफ आई 15 यूनिट्स, ऑल दिस, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। क्या यानी इसका क्या है एक्चुअली, क्या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, व्हाट इज अवर कैपेसिटी बोलने से इसका क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगा। वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स, सो बेस्ट इज इसका जो वैल्यू है कि इस हिसाब से आप कैपेसिटी बताइए, ठीक है। सो बेसिकली इट वैल्यू कैन बी योर कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, जो भी है। तो नॉर्मली ये कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम कैपेसिटी बताएंगे। तो मतलब आप जब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यू ऑल्सो शोकेस द टोटल नेट जो है आपका इन मॉनिटरी वैल्यू, ठीक है। तो इससे ऐसा मैं बताऊंगा, इससे अच्छा मान लीजिए इसमें और भी बहुत है, इसमें कुछ नहीं समझ रहा है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ आई एम प्रोड्यूसिंग वर्थ 50 lakhs, so now we are getting some better idea, right। इसमें से कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था, मगर अच्छा 50 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे फैक्ट्री में इन 1 क्वार्टर, so you are understanding क्या किस लेवल का ऑपरेशन है, ठीक है। so which is why it is always good when there are different products, always showcase the total cost, उस हिसाब से कैपेसिटी को बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस। ओके, नेक्स्ट इज कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस, ठीक है। सो किस तरह से आप कैपेसिटी प्लानिंग का प्रोसेस में आप आगे जाओगे, ठीक है। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज कैपेसिटी प्लानिंग, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, ऑल दैट, ठीक है। सो अभी इसको कैसे वी विल टेक इट फॉरवर्ड, ठीक है। सो कैपेसिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है, वन इज असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। फर्स्ट आपको यह देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द existing capacity, ठीक है, existing my capacity is this, then forecast the long range future capacity, ठीक है, next 2.5-3 years में what capacity is needed, you see that, and what is my current capacity, ठीक है। so you will know how much capacity you have to increase, ठीक है। next is identifying and analyzing sources of capacity for future needs, ठीक है। तो इसके बाद ये तो लॉन्ग रेंज आपने जो कर दिए, ठीक है। इसके बाद व्हाट यू विल नीड इज, यहाँ पे सोर्स ऑफ कैपेसिटी आप देखेंगे, बोलेंगे, ठीक है। यानी अगर ये कैपेसिटी हमको चाहिए फ्यूचर में, ठीक है, सो फ्रॉम वेयर कैन वी गेट दिस कैपेसिटी, विच कंपनी एंड व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव गॉट, ठीक है, राइट। और देन इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ कैपेसिटी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस, ठीक है।
तो यहाँ पे आप क्या ये कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यू विल सी द ऑल्टरनेटिव फैसिलिटीज उस केस में। यहाँ पे हमने सब आइडेंटिफाई कर दी, ये फैसिलिटीज चाहिए, वी नीड दिस इज गुड फॉर अस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे अगर इसका शॉर्टेज हो गया तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव। सेकेंडली, इफ दिस इज बिकमिंग टू कॉस्टली देन व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी आई एम रनिंग माई फैक्ट्री ऑन डीजल, ठीक है। तो अगर डीजल में मैं अपना फैक्ट्री अभी चला रहा हूँ, ओके, राइट। सो आई नीड, लेट अस से, डीजल फॉर लेट मी से 5 लाख रुपीज पर क्वार्टर, ओके, 5 लाख पर क्वार्टर का डीजल मुझे लगता है, ठीक है। सो बट इफ समवन नाउ someone has suggested me go for gas, ठीक है, डीजल की जगह आप गैस में मूव कीजिए, ओके। द कॉस्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम डीजल टू गैस इज वेरी लेस, ओके, लेट अस से इट इज नॉट टू मच, ठीक है। एंड सेकेंडली, गैस में सेम काम आपका विद सेम पावर, ओके, इट कैन हैपन फॉर 3.5 lakhs। तो मान लीजिए इवन इफ देर इज सम कॉस्ट गैस में मूव करने के लिए, इफ दैट कॉस्ट इज मैनेजेबल, आई कैन नाउ कंसिडर दिस, करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए भी आपको, यू ऑलवेज हैव टू हंट फॉर ऑल्टरनेटिव्स विच आर बेटर एंड चीपर, ठीक है, राइट। सो ये है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ कैपेसिटी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, एंड समटाइम्स व्हेन यू मूव टू बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, यू गेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यू विल गेट मोर मार्केट्स, ठीक है। बेटर टेक्नोलॉजी इन द एंड रिजल्ट्स इन लेस कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, ये तो आपको समझता ही है, ठीक है। और फिर लास्ट ये है, व्हाट यू विल डू इज सेलेक्ट कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव मोस्ट सूटेड टू द स्ट्रेटेजिक मिशन, ठीक है। गो फॉर स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव विच इज मोर सूटेड फॉर स्ट्रेटेजिक मिशन। आपका मिशन ऐसा है कि नहीं दैट यू विल नॉट गो फॉर पोल्यूटेंट्स, ठीक है, देन यू शुड गो फॉर सच थिंग्स विच कॉजेस लेस पोल्यूशन, ठीक है। तो बस ये है आपका कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस में, ये 5 तरीके से यू विल, ओके, बिल्ड द कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी प्लानिंग को इसके साथ हम प्लान करेंगे, ये 5 चीजों के साथ, ओके। चलिए, ओके, और एक चीज, देन कैपेसिटी प्लानिंग इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, करेक्ट। नया प्रोडक्ट आना है तो आपको इन योर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री यू माइट नॉट हैव सफिशिएंट कैपेसिटी, ठीक है, राइट। तो एक चीज हो सकता है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, because current volume में it is not being cost effective. If you can manufacture in bulk, say it will be cost effective. So in ये 2 cases में भी आपको you have to plan for capacity, okay, new capacity, right, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ऊपर के पॉइंट्स में हमने क्या देखा, what we have seen is after determining capacity need, okay, after determining capacity need, आपका फैसिलिटी लोकेशन एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में हमको उतरना होगा, ठीक है। सो यहाँ हमने ऊपर क्या किया, वी हैव डिटरमाइंड द नीड ऑफ कैपेसिटी, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी, इस टाइप की कैपेसिटी, ऑल दैट वी हैव सीन, ओके। सो अब जो है कैपेसिटी नीड हमने देख लिए, ओके। नाउ वी विल हैव टू गो फॉर फैसिलिटी लोकेशन एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। क्यों, व्हाई why do we go for facility location? Only after determining capacity need. So if I take you back, okay, again to the start of our chapter, ठीक है, operations planning, देखिए ये है हमारा operations planning, okay। इसमें what we have seen is demand forecasting, ठीक है। Now we are doing capacity planning. So capacity planning we have finished, okay, ठीक है, अब चल रहा है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग, ओके। सो नेक्स्ट विल बी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग गो हैंड इन हैंड, बट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। बट
इसके बाद ही आप लोकेशन चूज करते हो। वाई? ठीक है, मेन रीजन वाई इज, first you should know how much demand you are able to generate. If you are not able to generate enough demand, okay, will you be confident to set up a factory of say 15-20 crores? nahi, correct? So you have to first see whether you can make money or not. इसलिए first forecast the demand. You have forecasted the demand. ठीक है, demand is there. Now see, are you in a position to buy that much of machinery and create capacity? अगर हमारी कैपेसिटी है, only then you will go ahead and go for a location. Location में will invest only if the answer for these three is yes. ठीक है, ओके. सो इसीलिए फैसिलिटी लोकेशन इज कमिंग एट द फोर्थ पॉइंट. ठीक है, लोकेशन के बाद इट इज लेआउट. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, विल डू दैट आफ्टर लोकेशन. ठीक है, सो अभी वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. चलिए, ओके. So here, so after determining capacity need, facility location and process technology selection, what technology will use. ठीक है, तब ये सब में एक चीज आपको याद रखना है. ठीक है, ओके. ऑल्दो दीज आर ऑल, हम इस तरह से इसको लिस्ट किए हैं. ओके, लॉजिकली इट इज द, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. बट मेनी थिंग्स यू टॉक व्हेन द मैनेजर्स विल हैव अ मीटिंग. ठीक है, जो आपके टॉप मैनेजर्स विल हैव अ मीटिंग, ओके, दे विल नॉट टॉक अबाउट ओनली वन थिंग, करेक्ट? कई चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है. सो व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली इज मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स, हो सकता है डिमांड फोरकास्टिंग की बात हो रही है, साथ साथ में लोकेशन के भी ऑप्शंस का डिस्कशन हो गया. इट इज पॉसिबल. ठीक है, सो विच इज व्हाई. ठीक है, ये सब होता है. टॉप मैनेजर्स नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे कि दिस दिस इज बेसिकली सब्जेक्ट मैटर ऑफ मिडिल मैनेजर्स. ठीक है, चलिए. सो इसीलिए आफ्टर डिटरमाइनिंग कैपेसिटी नीड विल गो फॉर फैसिलिटी लोकेशन एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी सिलेक्शन. ठीक है, सो when long range capacity needs are estimated, it may result in one of the two situations. ठीक है, अब जब long range capacity को बिल्ड करते हो, यू आर बिल्डिंग लॉन्ग रेंज कैपेसिटी, क्या हो सकता है? तो एक्चुअली आपका इट कैन बी अ कैपेसिटी शॉर्टेज सिचुएशन. ओके, इट कैन रिजल्ट इन अ कैपेसिटी शॉर्टेज सिचुएशन और एन एक्सेस और सरप्लस कैपेसिटी सिचुएशन. ठीक है, ओके, आपने बिल्ड किए, यू हैव बिल्ट द कैपेसिटी, स्टिल डिमांड इज मोर, so that is capacity shortage. But if you have built more capacity, demand is not that much now. ठीक है, so it will be capacity surplus situation. Capacity built is more. ठीक है, ये दो situations आ सकता है हमारा. ठीक है, ओके. सो कौन सा अच्छा है? दोनों भी अच्छा नहीं है. So you should try to be closer to your demand, as close as possible. ठीक है, exactly close तो हो नहीं सकता, it's not possible, but you should try to be as close to the demand as possible. Okay, fine. चलिए, अब हम देखेंगे उसी का थोड़ा एक्सपेंशन है. ओके, इसमें जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी. ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स which you will look about before determining plant capacity. ठीक है, it is just an extension point. ठीक है, so here first is you will see capital investment required. ठीक है, if the capital expense is beyond your capability, you will not go ahead with that business. Correct? So first आप देखेंगे कितना capital investment. Okay, only then you will go for a particular plant capacity. Okay, so next is changes in product design, process design, market condition and product life cycles. ठीक है, so next what you have to see is कि in that particular business product design, process design में कितना change होता है. There are some business where companies have to keep on changing to match up the competitors actions. ठीक है, competitor just changes some design, especially it happens for children's products. ठीक है, कैडबरीज में यू विल हैव बबली आ जाएगा, कभी कभी कुछ और आ जाएगा, समटाइम्स समथिंग विल बी स्टफ्ड इनसाइड. इट्स जस्ट टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रन. यू डोंट नो द माइंड ऑफ चिल्ड्रन. समथिंग न्यू कम्स और some new looking chocolate comes,
children will get attracted. You will have to change to that. आपको वो बनाना पड़ेगा. तो इसीलिए where there is frequent changes in product design वगैरह ये सब है, तो आपको you have to किस टाइप की कैपेसिटी आप रखोगे जिसमें आप ये सब चेंजेस कर सकते हो. इट शुड नॉट बी रिजिड. ओके, फ्लेक्सिबल कैपेसिटी आपको यूज करना पड़ेगा यार. ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कैपेसिटी एडिशंस. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ होना चाहिए. यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी हम बोल रहे हैं इट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज. ठीक है, और यह है यहाँ पे whatever capacity you are choosing, tomorrow if there is more demand, वो इस तरह से होना चाहिए कि easily you can add capacity. Okay, okay, just a moment. ठीक है, just a moment. चलिए, so we are saying factors affecting determination of plant capacity. ठीक है, इसमें ये हम देख रहे थे क्या क्या what can affect determination of plant capacity. Capital investment. Okay, if too much changes are required in your product design, etc. Okay, so you will need capacity of that kind. If flexibility in addition, if demand is more, you should be able to add it. Okay, next is level of automation desired. Okay, next is level of automation desired. ठीक है, so here, okay, one moment, एक minute. Okay, students are not able to join, so I'm just looking into it. Okay, so I'll do one thing, I'll just finish these 2 points. Okay, and then I will look into it. So here next is a level of automation desired. So हमको, if we need automation, so it should be the compatibility of capacity should be such that you can, okay, automate whenever required. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए just for automation now whole capacity should become redundant. Okay, so market demand तो देखना ही देखना है, right? You have to see this should be the first point ideally. Okay, then product obsolescence and technology obsolescence. There are many technologies where new parts keep coming, right? Like Windows and all that. So when new parts come, new versions come, old versions become obsolescent. In that case, you should not invest too much because whole thing will get obsolescent. Okay, so you have to obsolescent मतलब क्या है? It will become useless. ठीक है, then next is, okay, type of technology selected. ठीक है, जो अपना टेक्नोलॉजी का टाइप है, ओके, उससे भी it will also affect determination of plant capacity. राइट, तो जो हमारा कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी है इट शुड अगेन बी compatible. Okay, so next is forms of capacity planning. So I'm ending this lecture now because, as I said, there is some problem for students to join in this. Okay, there is some problem, so I will what I'll do is I'll just log off from here. Okay, and we'll continue in the next lecture from here, from this point of time. Okay, so I'll have to log off and check what's the problem, right? Okay, so I'll just say continue. Fine. Okay, thank you. So we'll just continue in a while.